inventory, right? So main thing is inventory and its valuation. What is inventory? Main thing is we must understand what is inventory. So inventory means those items which are held by an organization for the purpose of selling, in the normal course of business. That is, जैसे कोई भी बिजनेस है वो कुछ ना कुछ चीजें में डील करता है, कोई बुक्स में डील कर रहा है तो बुक्स बेचने के लिए जो रखी हुई हैं, ठीक है, वो सब चीजें, यानी कि इन्वेंट्री में सबसे पहले क्या आ गया, ऑल दोज गुड्स विच यू आर कीपिंग फॉर द पर्पस ऑफ अल्टीमेट सेलिंग, ठीक है, दैट मीन्स finished goods. Inventory also means those items which are held for the purpose of preparing or completing finished goods or services. That means raw materials. For example, for preparing anything, you have to use some raw materials. Like even if this marker is made, ink is raw material for this, plastic is raw material for this, right? So inventory also includes raw materials. Secondly and thirdly, all those items which are consumed in the process of creating services or goods, that is consumables, like grease, oil, all those kind of small things which are used for the purpose of maintenance or which are used in the process of creating goods, right? So we can say loose tools means all those small tools which are used in the process of manufacturing. They are also included, like पेचकस, प्लास, है ना, क्योंकि उनको हम फिक्स्ड गुड्स में, फिक्स्ड एसेट्स में नहीं ले सकते हैं, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, एंड देन intermediary goods. Intermediary goods means all those things which can be called work in progress. Work in progress means, you know, जब भी हम कोई माल बनाने लगते हैं, from the raw material stage to the finishing stage, there is in between the goods, those goods which are partially finished, which are not completely finished, they are called work in progress. Even they are part of inventory. So we can say work in progress. Right? Now finished goods, raw material, consumables and loose tools, and work in progress. All these items combined together form inventory. But mind you, all those assets or all those items which can be used only as a part of some fixed asset, they are classified as fixed asset. For example, कोई जनरेटर के पार्ट हैं, ठीक है, अब वो हमने अपने स्टॉक में रखे हुए हैं, वो तभी यूज होते हैं जब उस टूट फूट हो जाती है या उनकी यूज होती है, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट के साथ ही यूज हो सकते हैं, इसलिए उनको हम फिक्स्ड एसेट में काउंट करते हैं, ना कि इन्वेंट्री में. आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट? अब हमें यह जानना जरूरी है कि हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री एंड इट्स वैल्यूएशन. वाई द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इंपॉर्टेंट. हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है. इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जानने की जरूरत है कि जो हमने माल बेचा उसकी हमें घर पर कीमत कितनी पड़ी. दैट मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दैट मीन्स all those goods which have been sold, how much they cost us, because that cost is to be matched against the revenues generated. ठीक है ना? अब कितनी कॉस्ट हमें पड़ी ये जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास जो माल खरीदा था सारा तो बिका नहीं, कुछ हो सकता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी हो, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी हो. अगर उसकी वैल्यूएशन में फर्क आता है तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट में फर्क आ जाता है.
इसका मतलब क्या निकला कि ठीक प्रॉफिट जानने के लिए हमारे को बहुत जरूरी है कि हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ठीक करें। इस बात को हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस all those goods which you have purchased, that is purchases, plus all direct expenses, all direct expenses। आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वेजेस, कैरेज इनवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देखिए, अगर आपकी ये फिगर्स यानी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स अगर बदल जाएं तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ गुड्स बदल जाएगा। आपको एक एग्जांपल देख के बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक इज 50,000 एंड परचेजेस आर से 2 lakhs, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर से 10, राइट, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज से वर्थ 80,000। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 2,50,000 प्लस 10 260,000 माइनस 80,000, दैट मीन्स 1,80,000। अगर अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,80,000 है और आपकी सेल्स अगर 2 lakhs है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? That is 2 lakh minus 180, 20,000। अब देखिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेक्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस एग्जांपल से अंदाजा लगाइए। अगर हम अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मान लीजिए गलत तरीके से हम 80 की बजाय अगर 1 लाख कर दें, अगर 1 लाख कर दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, अगर इसको 80 की जगह 1 लाख कर देते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना रह जाएगा? 160, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40,000। देखिए, इस गलती के नतीजे क्या निकल सकते हैं? इस गलती के नतीजे निकल सकते हैं जहां पर एक्चुअली हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली 20,000 था, वो अभी 40,000 नजर आ रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नेट प्रॉफिट भी नजर आएगा वो 20,000 से ज्यादा नजर आएगा। और आप अपनी जो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ड्राइंग्स करते हैं वो तो आप अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कर लेंगे, यानी कि आप अपने जो भी डिसीजंस लेंगे विद रिगार्ड टू ड्राइंग्स और डिविडेंड पेमेंट, उसमें 20,000 आप हमेशा ज्यादा लेके चलेंगे। तो यानी अगर ऐसा कंटिन्यूसली होता रहा तो एक दिन आएगा कि आपकी बैलेंस शीट में तो नजर आ रहा है कि आपके पास गुड्स काफी पड़ी हैं, उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, पर प्रैक्टिकली नहीं है, आपके पास पैसे कम होते चले जाएंगे और वो स्थिति आ सकती है कि आपको काम करने में मुश्किल होने लगे। यानी कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रॉफिट, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि आप वैल्यूएशन गलत कर रहे हैं। एक और बात समझिए, अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 180 की बजाय अगर 160 आ गई, क्वाइट पॉसिबल कि आप 180 में माल ही बेच दें, ये सोच के कि मेरी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 160 है। दैट मीन्स व्हाट? यू हैव नॉट मेड एनी प्रॉफिट्स एक्चुअली। बिजनेस के लिए कितने बड़े लॉसेस हो सकते हैं ये। इसलिए आप समझ लीजिए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रॉपर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर हमें प्रॉफिट अच्छे से कैलकुलेट करना है ये। सेकंड, हम जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमने लोन लेना होता है या लिया होता है, उनको भी करेक्ट पिक्चर देनी होती है। तो अगर हमारी बैलेंस शीट में जहां क्लोजिंग स्टॉक था एक्चुअली 80,000 का, मगर हम 1 लाख का दिखा रहे हैं, तो ये भी तो हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी हमारी बैलेंस शीट करेक्ट नहीं है एक्चुअली, लॉन्ग टर्म में वो भी हमें नुकसान ही देगी। ठीक है। थर्डली, अगर आपकी जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट और जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी है
कि आपको अपने जो बैलेंस शीट्स वगैरह होते हैं उसमें नोट्स देने होते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि व्हाट इज योर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है ना, आपने किस तरह से उसको वैल्यूएट किया है या नहीं किया है, तो आपको इसीलिए उसको प्रॉपर करना ही चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आप गलत करेंगे तो वो ऑडिटर्स की नजर में भी आएगा, अगेन दैट विल बी बैड। ठीक है, so these are all reasons why it is so important that inventory valuation should be done in a right manner. Now we will study what are the methods of valuation of inventory. Now the method of inventory valuation. Now inventory valuation method also depends on kind of business you are having. For example, in case of a manufacturing company, right, there will be naturally finished goods, raw material, work in progress, etc. Though in case of work in progress and finished goods we will study in IPCC. Here we will study only about finished goods, raw materials, only the valuation of raw materials. And in case of, say, if there is a company which is only retail chain, in that case we will study how we can calculate the inventory where it is only of finished goods. Right? Now there are certain